Hello guys, this is the Boggle Dog and welcoming you all on the Cortex Medicine. So this is the most important topic I am discussing and many of you are confusing in it, even including me. So यहाँ पे क्या बात करेंगे हम ह्यूमन एलिमेंट लीजन के बारे में, साथ में कोनस मेडुलरिस एंड कोडा इक्वाइना के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से आएंगे। सबसे पहले यूएमएन एलिमेंट लीजन के बारे में बात करेंगे। देखो यूएमएन इज लाइक इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन, देखो सबसे पहले कैसे याद रखना है सर, यूएमएन कहाँ तक डिफाइंड है, अबव द एंटीरियर हॉर्न सेल एंड इट्स एक्सॉन। एंटीरियर हॉर्न सेल किस में इंक्लूडेड है सर, इट इज इंक्लूडेड इन द लोअर मोटर न्यूरॉन टिल द स्केलेटल मसल। सो what you can say that UMN lesion is what this include, it include cortex मतलब cerebrum and all brain and spinal cord ना, till before the anterior horn cell. These things are included in the upper motor neuron lesion. If you remember, upper motor neuron controls the lower motor neuron और that control the muscle in turn. इफ़ यू सी, यदि आप ध्यान से देखेंगे कि यदि किसी पेशेंट को यदि अपर मोटर न्यूरॉन की इंजरी होती है, इट मीन्स लोअर मोटर न्यूरॉन पर कोई भी वॉच रखने वाला नहीं है, कोई भी उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। देयर इज नो वन that can control lower motor neuron if upper motor neuron is gone or upper motor neuron palsy is present. This simply means that upper motor neuron put a watch on lower motor neuron. This means in the upper motor neuron palsy, there is inhibitory effect on muscle stress reflex, but there is a type of paralysis which is spastic because too much contraction and muscle goes in the spasm. TTR means hyperreflexia because now the element muscle work anything and anyhow in any way. So this will hyperreflexia. Muscle tone will be hypertonic, excess tone. मसल मास क्या होगा सर, डिसयूज एट्रोफी। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। फेसिकुलेशन इज नॉट प्रेजेंट बट द क्लोनस इज प्रेजेंट। ओके, क्लोनस मींस exaggerated response is present. Babinski sign is positive as reflex is hyperreflexic. Other reflexes are abdominal clemency that is lost. I think it is lost in both. Voluntary movement is decreased in speed and area of body involved is large. But in the element lesion means if we are cutting from this means neither the human is controlling nor the element, means the muscle is free. Free means the type of paralysis is flaccid. Okay, there is no reflex, hyporeflexia, muscle tone is hypotonic, muscle mass is wasting atrophy, fasciculation is present, Babinski sign is not present, voluntary movement is lost, and area of body involved is small area. So in the by this concept, human lesion included like stroke, spinal cord injury, multiple sclerosis, and traumatic brain injury. It is the traumatic brain injury. So which disease? Okay, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं. A patient is suffered from RTA. After a few days, he has aggregated right side extensor plantar reflex and knee jerk. What other finding would be seen? देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखोगे, इंपॉर्टेंट है, INI सीट या नीट का रिपीटेड क्वेश्चन डाला हुआ है. दिस इज द had exaggerated right side extensor plantar reflex मीन्स क्या शो कर रहा है कि बाम्बिस की शाइन क्या है, प्रेजेंट है, और नीजर्क भी प्रेजेंट है. इट मीन्स कि ये किसको शो कर रहे हैं, दोनों के दोनों अपर मोटर न्यूरॉन लीजन को शो कर रहे हैं. तो विच फाइंडिंग इज रिप्रेजेंटिंग अपर मोटर न्यूरॉन? सर फेसिकुलेशन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है. नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. बट सर व्हाट इज द आंसर? यहाँ पे क्या है आंसर डायरेक्टली देखने से? सर एंकल क्लोनस. एज आई टोल्ड कि क्लोनस किस में प्रेजेंट रहेगा, अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर. तो क्लोनस इज द आंसर. और इसको आप करेंगे ना इस वाले को, तो ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से होगा, वो आपको पता लग जाएगा देखने से कि क्यों आंसर ये दोनों नहीं गए. बट यहाँ पे कहने का मतलब थी क्लोनस और फेसिकुलेशन में कंफ्यूज होता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दी एंकल क्लोनस इज प्रेजेंट इन यूएमएन. इसके बाद अब देखते हैं तो आंसर क्या हो गया इसका, ए. अब देखते हैं कि सर ऐसा कौन सा लीजन है, ऐसी कौन सी डिजीज है जो यूएमएन यूएलएमएन दोनों मिलते हैं इसमें. इट इज द एएलएस, अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस. सर अब बात करते हैं सर कॉनस मेडुलस के बारे में थोड़ा देखते हैं एक बार. हाँ, सो व्हाट इज कॉनस मेडुलरिस? नॉर्मली आपने देखा होगा, नॉर्मली यू सॉ डेट जब
वर्टिब्रा की बात करते हैं, उसके लेवल की बात करते हैं, तो +2 और +2 का डिफरेंस आता है इन दी लोअर वर्टिब्रा। तो आप देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड किस लेवल पे एंड हो रही है, लोअर वर्टिब्रा ऑफ L1 वर्टिब्रा। अब यहाँ पे इस पार्ट को क्या कहा हमने, कोनस। कोनस मीन्स यहाँ से कट हो गया। इफ कट एट दिस प्लेस, दिस इज द कोनस मेडुलरिस। बट स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट L1 और L2 लेवल पे, सो डज द कोनस। इट कंटेन्स सैक्रल स्पाइनल सेगमेंट। एस एक्चुअली क्या है ये, यहाँ तक क्या है, लंबार तक तो क्या है, नर्व्स आ रही है, सेगमेंट आ रहे हैं, लेकिन कोनस पार्ट इज दिस। यहाँ पे क्या होता है एकदम से, एज मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो स्पाइनल कॉर्ड तो जा रही है, एक्सटेंस हो रही है नीचे तक S2 तक, लेकिन जो इसके सेगमेंट आएंगे, जो इसके न्यूक्लियाई आएंगे, वो कहाँ पे फिट हो जाएंगे, कोनस मेडुलस के अंदर टाइटली पैक होंगे। इट इज टाइटली पैक्ड। ओके, so it contains sacral spinal segment like S3 to S5 and that give rise to lower sacral and coccygeal nerve। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि इट इज टाइटली पैक, बहुत टाइटली पैक होते हैं, इसलिए इवन स्मॉल लेजन अफेक्ट ऑल। ओके, एंड देयर इज ए डेलिकेट ब्लड सप्लाई। नॉर्मली इसलिए क्या कहते हैं कि कॉनस मेडुलरिस अक्यूटली प्रेजेंट करता है। एक बार याद रखना क्वेश्चन के अंदर, यदि क्वेश्चन के अंदर अक्यूट और क्रोनिक मेंशन किया हुआ है, फिर भी आपको कॉनस के अंदर मतलब यदि अक्यूट मेंशन किया है तो ऐसा नहीं कि कॉर्ड एक्वाना आंसर नहीं जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, यदि अक्यूट दिया हुआ है तो दोनों को कंसीडर करना है, कॉनस को भी कंसीडर करना है, एंड यू आल्सो हैव टू कंसीडर द कॉर्ड एक्वाना। यहाँ पे एक चीज है कि एंकल जर्क अफेक्ट हो सकता है, यस सर हो सकता है, बट इट यूजुअली प्रिजर्व। अफेक्ट कैसे हो सकता है कि सर ये जो L1 L2 पे जो S3 है S5 है, यदि अपवर्ड की तरफ जाए तो अपवर्ड लीजन लार्ज हो तो अफेक्ट होगा, वरना इट इज यूजुअली प्रिजर्व। तो आपको क्या याद रखना है कि सर कॉर्नर्स के अंदर इट इज यूजुअली प्रिजर्व्ड। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, अब यहाँ पे क्या है कि यदि आप देखेंगे तो देखो S3 S5 सेगमेंट जो अफेक्ट हो रहा है, ये नॉट डायरेक्टली, मतलब अफेक्ट तो हो रहा है डायरेक्टली, बट इफ यदि ये एक्सटेंड करेगा अपवर्ड, अपवर्ड एक्सटेंड करने से क्या होगा, इट अफेक्ट द डिसेंडिंग अपर मोटर न्यूरॉन दी ऑफ द corticospinal tract बिफोर रीचिंग द एंट्रियन। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कंसेप्ट कि मान लीजिए एंट्री हॉर्न सेल पे ही से, मान लीजिए ये S3 टू S5 है, यहाँ पे क्या है, इसकी न्यूक्लियस है, यहाँ पे अफ्टर है, बट ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो गया, तो यहाँ पे जो ये जो लीजन ये जो जा रही है नर्व्स, ये कौन सी है, अपर मोटर न्यूरॉन का कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि इन कोनस मेडुलरिस देयर इज सिम्टम, कौन से सिम्टम आएंगे, माइल्ड साइन या माइल्ड मोटर सिम्टम भी रहते हैं, तो मोटर वीकनेस प्रेजेंट रहेगी। ओके, लेकिन जब जब ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा तब, व्हेन इट एक्सटेंड, बट यूजुअली इट डज नॉट एक्सटेंड। ओके, मतलब सिंपल यदि कोई कोई क्या क्या मोस्ट कॉमन फीचर है तो वो अब आएगा। देखो अब क्या करते हैं कि S3 S5 से नीचे क्या हो गया, यू नो कि एंट्री हॉर्न सेल और आफ्टर जो इसके बाद में जो नर्व वो अफेक्ट होगी, तो कॉनस मेडुलरिस क्या कंटेन रखता है, एंट्री हॉर्न्स ऑफ सैक्रल सेगमेंट के। S3 से S5 की जो सेगमेंट है इसके एंट्री हॉर्न सेल रखता है, मींस ये क्या शो कर रही है, एलिमेंट टाइप ऑफ लेजन। तो एलिमेंट क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा पेरिनियम को, है ना, सेडल एनेस्थीसिया जिसे कहेंगे हम। एंड लोअर लिम्ब के रिफ्लेक्सेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, एंकल जर्क लाइक एक्शन, और फेसिकुलेशन दिखेगा, और इनके अंदर क्या दिखेगी, लेट एट्रोफी दिखेगी। ऑटोनोमिक अफेक्ट होता है क्यों सर, कि S1 S2 इन दी इंट्रोमीडियोलेटरल सेल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है। सिंपल, मतलब सिंपल मेरा कहने का मतलब है कि S2 S4 के न्यूक्लियाई इफेक्ट हो रहे हैं, सेम यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, ऑटोनोमिक नर्व फाइबर प्रेजेंट है। तो सिंपल ये कही कि डेट्रूसर मसल होती है ना, जो यहाँ पे काम करना क्या बंद कर देती है, बंद, देयर इज नो सिग्नल टू डेट्रूसर, दैट्स व्हाई द यूरिनरी रिटेंशन इज देयर। अब यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन भी हो रहा है, डेट्रूसर मसल काम भी नहीं कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पा रही, दैट्स व्हाई देयर इज ए ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओके, because of no contraction, and there is also a fecal incontinence because of the loss of internal sphincter के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो भी लॉस हो जाता है। also there is a sexual dysfunction like libido and all का dysfunction भी हो जाता है। अब बात करते हैं कोडा इक्वाइना की कंपैरिजन के अंदर, तो there is a bundle of spinal nerve root। ये क्या होता है, जो स्पाइनल नर्व रूट ये यहाँ पे अफेक्ट करेगा ना, कोडा इक्वाइना यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो अब इट इज यू नो बाय मीन कि जो सारे की सारे हैं ये किसके बाद में है सर, एंटीर हॉर्न सेल के बाद की थिंग्स है, जो नर्व्स निकल रही, जो अब ये क्या है, सारी की सारी, ये सारे के सारे क्या है सर, स्पाइनल सेगमेंट जो भी निकल रहे हैं, रूट निकल रही, किसके बाद में है सर, ये सर ये बाद में है किसके,
एंट्री हॉर्न सेल के बाद में। दैट्स वाई फर्स्ट थिंग तो सर कि स्पाइनल नर्व रूट है, तो ये क्या करेगी, रेडिकुलोपैथी करवाएगी, मींस इट अफेक्ट द रूट्स एंड सीवियर रेडिकुलर पेन इज इन दीज पेशेंट इज प्रेजेंट। सेकंड क्या है कि सर क्योंकि ये एलएमएन है, आफ्टर द स्पाइनल कॉर्ड, आफ्टर द किसके बाद में, आफ्टर द एंट्री हॉर्न सेल के बाद में। दैट्स वाई ये क्या हुआ सर, एलिमेंट टाइप की अप्रोच है, ऑटोनॉमिक अप्रोच भी करेगी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या जाएंगे, कुछ नर्व फाइबर जाएंगे ऑटोनॉमिक सिस्टम के। ठीक है, तो द सीवियर रेडिकुलर पेन का कॉज पता लग गया आपको, एलिमेंट का कॉज पता लग गया आपको। वाई एसिमेट्रिकल, अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये एसिमेट्रिकल क्यों प्रेजेंट करता है। देखो एसिमेट्रिकल कॉज ये होता है कि कॉडा इक्वाइना इज ए लूज बंडल ऑफ इंडिविजुअल नर्व रूट्स, मल्टीपल नर्व रूट्स है, जो कि क्या है, सीएसएफ के अंदर फ्लोट करती है। स्पाइनल कॉर्ड किसी से टाइटली पैक नहीं है, बिल्कुल लूजली रहती है। दैट्स वाई इट इज स्प्रेड आउट, और ये क्या होती है, फैली हुई भी होती है, स्प्रेड आउट भी होती है, नॉट यूनिफॉर्म, एंड दैट्स वाई इट कैन बी कंप्रेस्ड अनइवनली। दैट्स वाई इन मोस्टली केसेस ये अनइवनली कंप्रेस्ड होती है, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी टाइटली पैक हो तो इवनली कंप्रेस्ड हो। इसलिए आप देखेंगे तो कोडा इक्वाइना के अंदर क्या होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल वर्ड मेंशन रहेगा, बट कॉनस मेडुलस के अंदर इट इज द बाइलेटरल मोटर वीकनेस, यदि रहेगा तो प्रेजेंट वहां पे। यदि बाइलेटरल मोटर वीकनेस की बात करें तो पहली बात तो देखो मोटर है, मोटर से आपको साफ पता लग रहा है कि किसकी बात हो रही है, कॉनस मेडुलस की, बिकॉज वो क्या कर रहा है, यदि एक्सटेंड हो रहा है तो ही ह्यूमन लीजन के अंदर चेंज हो रहा है। दैट्स वाई वहां पे मसल की मोटर पावर अफेक्ट होगी। यहाँ पे क्या है, लोअर मोटर को अफेक्ट कर रहा है एलिमेंट को। ठीक है, एलिमेंट को अफेक्ट कर रहा है तो मोस्टली क्या होगा कि एलिमेंट के अंदर जो अफेक्ट होता है वो क्या होता है, मटर मसल पावर यूज नहीं होती है। जैसे इसका कॉज होता है यूनिलेटरल डिस्क डेसिकेशन, है ना। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली ये जो क्रॉनिक डिजीज होती है प्रकार की, अब यहाँ पे क्या है कि रूट क्या है, रूट क्या रहती है कि भाई सर L5 के अंदर फुट ड्रॉप है और S1 के अंदर एंकल रिफ्लेक्स है, ये हो सकता है प्रेजेंट। बोथ रिफ्लेक्स लोस्ट रहेंगे और डिक्रीज रहेंगे, नी इफ लार्ज हर्निएशन। यहाँ पे क्या होगा, कॉडा इक्वाना के अंदर रिफ्लेक्स, दोनों रिफ्लेक्स लोस्ट हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं। नी कब होगा, मतलब लोस्ट जब लार्ज हर्निएशन हो, दैट्स वाई। तो नी चूंकि L4 को सप्लाई करता है, दैट्स वाई यहाँ पे हो रहा है। अब बात करें इस वाले टेबल की, ये सारे टेबल के अंदर सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए। सडन होता है, बायलैटरल होता है सर, इट इज ग्रेजुअल, इट इज यूनिलेटरल, नी जर्क पिजर्ड रहेंगे, यहाँ पे बहुत नी जर्क एंड एंकल जर्क अफेक्टेड हो सकते हैं। इट इज लेस सीवियर, यहाँ पे मोर सीवियर, क्योंकि क्या है, पॉली, ये क्या है, रेडिकुलोपैथी है, लो बैक पेन मोर रहेगा या लेस रहेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगी स्पेसिफिकली क्या मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या है, तो आपको आंसर दोनों के अंदर क्या देना है, सेडल एनेस्थीसिया इज प्रेजेंट इन बोथ। तो इंस्टेड ऑफ टिक द स्पेसिफिक फाइंडिंग, अनस्पेसिफिक फाइंडिंग लाइक मोटर वीकनेस, मोटर वीकनेस क्या है, ओनली एक्सटेंड्स, तो तभी मोटर वीकनेस होगी, तो बेटर आंसर क्या हो जाएगा वहां पे, आपको क्या मार्क करना है, सेडल एनेस्थीसिया। यहाँ पे एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट था, ये मैंने अपने एक बार जस्ट मैंने देखा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूरिनरी रिटेंशन प्रेजेंट हो रहा है लेकिन लेट क्यों हो रहा है। तो इसका कॉज पता लगा मुझे कि बिकॉज इट इज देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मॉल एंड स्लो फाइबर्स, मतलब यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्मॉल और स्लो फाइबर का हो रहा है, और इट इज नॉट इन सेंटर। तो इसलिए क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। वाई अर्ली इन मेडुला, मतलब कॉनस मेडुलस के अंदर अर्ली क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली S2 S4 के क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियाई अफेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियाई अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, देयर इज अ फाइबर आर अफेक्टिंग हियर, द fibers which are affected it is a process slow and it is also affected by the fibers are slow and small, that's why यहाँ पे होगा जो अफेक्शन होगा, जो कोडा कोडा इक्वाना के अंदर जो डिजीज होगी वो कब अफेक्ट होगा, यूरिनरी रिटेंशन लेटर होगा, डिजीज के अंदर लेटर पार्ट के अंदर होगा, इट प्रेजेंट लेट इन द कोर्स। बाद में मुझे पता लगा कि मेरे पॉइंट पुट करने के बाद में कि ये प्रीवियस ईयर INI-CT का क्वेश्चन है कि व्हाई द urinary retention is affected late in the course of cold iconic disease because there is an unmyelinated nerve and the nerves are small. Okay, so I hope the concepts are clear. Still कोई doubt हो तो you can DM me at the rate of the bogus rock. Thank you. Keep following. Keep sharing.